Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series of Python programming. In this video, we are going to discuss about data structures. So let's start now. What are data structures? Data structures represent how your data is organized and stored in your computer memory. Means जो भी आपके पास डेटा है वो किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है. आप उसको किस तरीके से स्टोर कर रहे हो, मेमोरी में किस तरीके से ऑर्गेनाइज हो रहा है, स्टोर हो रहा है, दैट इज ऑल अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स. So next is implementation of data structures. There are two ways to implement the data structure. First one is simple data structures and second is compound data structures. So simple data structures are built from primitive data types. And pure primitive data types can be integers, reals, character, booleans. जो भी आपके built in data types को use करके जो हम structure form करते हैं that is called simple data structure. And compound data structure वो होता है जो हम simple data structure को use करके कुछ create करें तो that is called compound data structure. So simple data structures are used to form complex data structures. Compound data structures are further classified into two types, linear and non-linear. Linear means your elements will be stored in a sequential order. For example, stack, queue and linked list. And non-linear means data can be stored as multiple level. For example, trees and graph. जैसे ट्री में क्या होता है, उसके नीचे रूट होती है, फिर ऊपर फर्दर क्या होती हैं, ब्रांचेस. तो वो एक लीनियर फैशन नहीं होता है. जैसे स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है. दीज आर योर एग्जांपल्स ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. इन आवर सीबीएसई क्लास 12 करिकुलम वी हैव टू स्टडी दिस स्टैक एंड क्यू. सो दैट मीन्स स्टैक एंड क्यू बोथ आर योर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. सो लेट्स स्टार्ट विद स्टैक. आपने स्टैक वर्ड सुना होगा. स्टैक ऑफ बुक्स, स्टैक ऑफ पेपर्स, स्टैक ऑफ नोटबुक्स, स्टैक ऑफ कॉइन्स, स्टैक ऑफ पेबल्स. व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टैक? मीन्स कलेक्शन ऑफ दीज इन अ प्रॉपर मैनर. जब हम इन बुक्स को एक के ऊपर एक रख देते हैं तो वो आपका क्या फॉर्म हो जाता है, स्टैक. आई विल शो यू द एग्जांपल फर्स्ट. सी हियर, फर्स्ट वन इज द स्टैक ऑफ पेबल्स. यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल पेबल्स हैं. हमने यहाँ पर इसका क्या क्रिएट कर दिया, एक स्टैक. नेक्स्ट इज अ स्टैक ऑफ कॉइन्स. कॉइन्स हमने रख दिए, प्लेस कर दिए वन एक के ऊपर एक. स्टैक ऑफ चपातीस. आप मैरिज में जाते हो किसी फंक्शन पर, वहाँ डिनर टाइम पर प्लेट्स लगी होती हैं, वो भी आपकी क्या होती है, स्टैक की फॉर्म में. सो लेट्स स्टडी द इंट्रोडक्शन नाउ. अ स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. Now see here, stack is a linear data structure. अभी हमने पढ़ा ये कि जो complex data type में two होते हैं, types linear and non-linear, and both stack as well as queue are your linear data structure. And stack is a list of elements in which element may be inserted or deleted only at one end. Means जो भी आपका insertion करना हो या deletion करना हो, that will be from only one end. And that end is called the top of the stack. Example देखिए. अब जैसे these are the stack of coins. अब मुझे अगर new coin place करना है, मैं इसी end से करूंगी, टॉप से, from here. और अगर मुझे कोई coin remove करना है तो भी मैं यहीं से करूंगी. Means insertion और deletion दोनों मेरे एक ही end से होंगे and that end is called your top end. तो इसमें हमारा एक ही end होगा. Okay, it follows the principle of last in first out. This is called LIFO principle. ठीक है, तो stack is based on the LIFO principle. Let's again get back to example कि अब मैंने एक के ऊपर एक coins रख दिए. First this रखा, second this, third this one, fourth, fifth. Suppose this is my last coin. अब जब मुझे remove करना है तो सबसे पहले कौन सा remove होगा, जो आपने लास्ट में प्लेस करा वो कि जो सबसे पहले प्लेस करा वो? ऑब्वियसली जो
लास्ट में प्लेस करा, पहले ये कॉइन रिमूव होगा, फिर ये रिमूव होगा, इस तरीके से। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? LIFO प्रॉपर्टी। LIFO मीन्स लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। LIFO means the element inserted last would be the first one to be deleted. Now move to the next, operations on stack. There are mainly two types of operation that we can perform on the stack. First one is push operation and second is pop. ये आप पढ़ चुके हैं, बस टर्म्स डिफरेंट है। अभी हमने बताया कि स्टैक में हम एलिमेंट को इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। So insertion operation is called push and deletion operation is called pop. Let's get started now. There are mainly two types of operations, push and pop. और इसमें आपका एक ही end होगा and that end is called your top end. Insertion of an element on the top of stack is called push. Suppose this is your stack, एक ही end है top end, पुश। अगर हम कोई एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन। एंड रिमूवल ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टैक, टॉप से हमने एलिमेंट को रिमूव किया तो दैट इज कॉल्ड पॉप ऑपरेशन। क्लियर? अब देखो दोनों ऑपरेशंस इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी परफॉर्म विद द टॉप ऑफ स्टैक। सी, और ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है स्टैक? LIFO प्रॉपर्टी, लास्ट इन first out. Now let's understand with an example. कि suppose I am having these 5 elements in my stack, 24, 56, 4, 9 and 2. Initially your stack will be empty, कोई एलिमेंट नहीं है इसमें। अब हम पहले पुश ऑपरेशन करेंगे। सबसे फर्स्ट एलिमेंट इज आवर 24, तो जो हमारा एम्प्टी स्टैक है उसमें मुझे कौन सा एलिमेंट पुश करना है? 24। अब देखो, नाउ दिस विल बी योर टॉप एंड। ठीक है, दिस विल बी योर टॉप एंड। नाउ आफ्टर दिस व्हाट यू हैव टू पुश? यू हैव टू पुश द एलिमेंट 56। नाउ योर टॉप पॉइंटर विल बी दिस। Whenever you insert any element or delete any element from the stack, your top pointer will get updated. In case of insertion operation, it will be incremented, and in case of deletion operation, it will be decremented. After this, you have to push 4, so this will be your top end. Then push 9, then push 2. ठीक है? अब देखो, suppose मेरे stack का size क्या था? 5. अब मैंने 5 एलिमेंट्स इंसर्ट कर दिए, 1, 2, 3, 4, 5। अब मैं स्टैक मेरा फुल हो चुका है। अब अगर मैं इसमें इससे ज्यादा एलिमेंट इंसर्ट करना चाहूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मीन्स अगर आपका जो स्टैक है वो आपका फुल हो चुका है, उसकी मेमोरी कंप्लीट हो चुकी है, और फिर भी आप उसमें एलिमेंट को इंसर्ट करना चाह रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड ओवरफ्लो केस। Now next move to pop operation. Now this is your stack. अब सबसे पहले कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा? दिस 24 और 2। अब now I get to know कि जो स्टैक है that follows the LIFO property, last in first out. अब देखो, सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट आया था मेरे पास? 2। तो सबसे पहले रिमूव कौन सा होगा? 2। तो हम क्या पॉप करेंगे? 2। After that 9 will be popped, then pop 4, then 56, then 24, and at the end your stack will be empty. See here, अब स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है। अब अगर मैं इसके बाद कोई डिलीशन ऑपरेशन करना चाहूँ, कि अगर मैं ऑपरेशन लगा दूं कि पॉप वन मोर एलिमेंट फ्रॉम दिस स्टैक विच इज ऑलरेडी एम्प्टी, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं? अंडरफ्लो। ठीक है, दो केसेस हो गए, अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो। ओवर का मतलब क्या होता है? ज्यादा, और अंडर का मतलब क्या होता है? कम। तो ओवरफ्लो मीन्स अगर आपका स्टैक ऑलरेडी फुल है, उसमें आप और एलिमेंट इंसर्ट करना चाहो तो दैट इज कॉल्ड ओवरफ्लो, और अगर आपका स्टैक एम्प्टी है, उसमें से आप एलिमेंट को डिलीट करना चाहो तो दैट इज कॉल्ड अंडरफ्लो केस। नाउ नेक्स्ट, दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू आल्सो। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन when one tries to push an element
in a stack or queue that is full. Now read this line carefully. In Python, since list can grow, आपकी जो लिस्ट है उसमें आपका कोई साइज फिक्स नहीं है, तो ओवरफ्लो कंडीशन तभी आएगी जब आपकी मेमोरी क्या होगी, कंप्लीट फुल हो जाएगी, अदरवाइज ओवरफ्लो कंडीशन इसमें नहीं होती। जो बाकी दूसरी लैंग्वेजेस से फेमिलियर हैं, सी, C++, उसमें क्या होता है, हम साइज फिक्स कर देते हैं एरे का। सपोज मैंने साइज लिया 10, तो मैं 10 से ज्यादा एलिमेंट्स को इंसर्ट नहीं करा सकती, बट पाइथन में लिस्ट में ऐसा हमारे पास कोई भी केस नहीं है। तो ओवरफ्लो केस आपका सिर्फ तभी होगा अगर आपकी मेमोरी जो है फुल हो जाती है। एंड अंडरफ्लो, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन when one tries to pop or delete an item from an empty stack or queue, कि अगर मेरी stack और queue empty है and still I am trying to delete the element, that is called underflow. Now queue just opposite of stack, but similarity क्या है, both are linear data structure. उसमें insertion और deletion एक ही end से होता था, and in queue we are having two ends, rear end and front end. जो आपका इंसर्शन होगा दैट विल बी फ्रॉम रियर एंड, और डिलीशन कहाँ से होगा, दैट विल बी फ्रॉम फ्रंट एंड। क्यू नेम सुना होगा ना आपने, वर्ड स्टैंड इन अ क्यू, वॉक इन अ क्यू। एग्जांपल देखो, जब भी आप कोई किसी सपोज रेलवे काउंटर पे गए टिकट लेने, या स्कूल में आप फीस काउंटर पे फीस सबमिट कराते हो, क्यू में खड़े होते हो प्रॉपर लाइन में, तो वो आपकी क्या होती है, क्यू। सी दिस, ठीक है। अब सपोज वो पर्सन है, ये आपका सबसे पहले आया, ठीक है, ये आपका फ्रंट एंड है एंड दिस इज योर रियर एंड। तो अगर कोई न्यू पर्सन आएगा तो वो कहाँ पर आएगा, आगे आएगा कि डायरेक्ट पीछे आएगा, पीछे। तो दैट मीन्स इंसर्शन कहाँ से होगा, रियर एंड से। अब देखो, इसने टिकट ले ली, सबसे पहले ये आया था, तो सबसे पहले भी यही जाएगा। ये कौन सा एंड होगा मेरा, फ्रंट एंड। मीन्स जो डिलीशन होगा वो फ्रंट एंड से होगा और जो इंसर्शन होगा वो रियर एंड से। और क्यू कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, फीफो प्रॉपर्टी, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। ओके, उसमें हमारे पास पुश और पॉप ऑपरेशन थे, इसमें क्या है, एनक्यू एंड डीक्यू। इंसर्शन ऑपरेशन इज कॉल्ड एनक्यू एंड डिलीटिंग द एलिमेंट फ्रॉम द क्यू इज कॉल्ड डीक्यू। Now same, I have explained this. Insertion of element is done at rear end and that operation is called NQ, and deletion of an element is done from front end and it is called DQ. Now see, this is our Q. Insertion back से होगा and this is called NQ, and deletion will be from front and this is called DQ. Example देखिए, अब suppose ये elements है 5 4 3 2 1, ये पोजीशन हो गई। अब मुझे क्या इंसर्ट करना है, 24, देन 56, देन 4, देन 9, देन 2, और डिलीशन कहाँ से होगा, फ्रॉम फ्रंट एंड। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या इंसर्ट कराया था, 24, तो सबसे पहले डिलीट क्या होगा, 24, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद क्या इंसर्ट कराया था, 56, तो क्या डिलीट होगा, 56। ठीक है, आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू नाउ। इसमें से एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है कि आपको ऑपरेशंस पता होने चाहिए, पुश और पॉप क्या होते हैं, क्यू में आपका एनक्यू और डीक्यू क्या होता है, ठीक है, प्लस आपकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी क्या है स्टैक और क्यू में। सिमिलैरिटी तो क्या है बेटा, बोथ आर ऑफ लीनियर डेटा टाइप स्ट्रक्चर, एंड डिफरेंसेस, सो मेनी डिफरेंसेस आर देयर। उसमें हमारे पास स्टैक में वी आर हैविंग ओनली वन एंड, दैट इज कॉल्ड टॉप एंड, एंड इन क्यू वी आर हैविंग टू एंड, front and rear. In stack, insertion and deletion will be performed from top end, but in queue, insertion will be from rear end and deletion will be from front end. Okay, so that's all for this introductory part. In our next video, we will be implementing stack and queue using list. With the help of program, I will tell you कि stack और queue हम Python में कैसे implement करते हैं. Okay. Stay tuned, stay connected. Thank you.